اور اب بلیٹن میں بات کریں گے پشاور میں آئی ایم سائنسز کے تحت سینٹر آف ایکسلنس برائے ڈیجیٹل اور ہائی ٹیک سکلز کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خطاب کیا۔ پشاور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی جدید ٹیکنالوجی کی طرف لے جا رہی ہے اور ڈیجیٹل سکلز، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں میں سرمایہ کاری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تعلیمی نظام کو مارکیٹ اور اسکل بیسڈ مضامین کے مطابق تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میرٹ اور شفافیت حکومت کی بنیادی پالیسی ہے اور ہزاروں اساتذہ اور ڈاکٹرز کی بھرتیاں مکمل طور پر میرٹ پر ہی کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن اور ناانصافی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور نظام سے کرپٹ عناصر کو باہر کیا جا رہا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کے لیے نئی یوتھ پالیسی، انٹرنشپ پروگرامز اور اسکالرشپس بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں، جبکہ مستحق طلبہ کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید تعلیم اور تحقیق کے ذریعے ملک کا مستقبل سنوارنا ہوگا اور قلم کی طاقت سے فرسودہ نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے واسطہ لاہور ہیڈ آفس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اعلیٰ سطحی وفد کی آمد ہوئی ہے، جس کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان تجربات کے تبادلے اور شہری خدمات میں بہتری کے لیے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی زیر قیادت وفد میں چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی صدیقی، چیف آپریٹنگ آفیسر اسد اللہ خان، چیف کمرشل آفیسر حارث سرفراز، چیف اسٹریٹجک افسر صادق یونس اور چیف فائنینشل آفیسر عمار خان شامل تھے۔ وفد کا واسطہ لاہور پہنچنے پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، چیئرمین پنجاب واسا چودھری شیر علی خان، وائس چیئرمین چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے پرتپاک استقبال کیا۔ دورے کے دوران وفد کو واسا لاہور کے پانی کی فراہمی کے نظام، سیوریج سسٹم، ریونیو کلیکشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ وفد کو واسا کے مختلف فیلڈ آپریشنز، ڈرینیج سسٹم، ڈسپوزیبل اسٹیشنز اور مونسون سیزن کی تیاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ یہ دورہ دونوں اداروں کے درمیان تکنیکی تعاون اور شہری سہولیات کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایس پی غازی فیصل سلیم، پی ایس پی ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پیٹرول لاولپنڈی نے پی ایچ پی پوسٹ ہتار ضلع اٹک کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے انتظامی اور آپریشنل امور، پیٹرولنگ نظام اور ڈیوٹی پر موجود افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ایس پی غازی فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے ہائی ویز پر مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے اور پیٹرولنگ ہر صورت ایس او پیز کے مطابق کیے جائیں۔ انہوں نے سڑک حادثات میں کمی کے لیے خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، اوور اسپیڈنگ اور غیر محتاط ڈرائیونگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے، جبکہ عوام میں روڈ سیفٹی آگاہی کو بھی فروغ دیا جائے۔ مزید برآں انہوں نے ویٹ اسٹیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے عملے کو ہدایت دی ہے کہ اوور لوڈنگ کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے انجام دیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو اسپتال لاہور کا دورہ کیا ہے۔ دورے کا مقصد آنکھوں کی صحت کے شعبے میں آسٹریلیا کے دیرینہ تعاون کے اثرات کا خود مشاہدہ کرنا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشن مسٹر ٹموتھی کین نے کالج آف آپتھمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میو ہاسپٹل لاہور کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد آنکھوں کی صحت کے شعبے میں آسٹریلیا کے دیرینہ تعاون کے اثرات کا خود مشاہدہ کرنا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی اور میو ہاسپٹل میں آسٹریلوی تعاون سے چلنے والی طبی، تدریسی اور تربیتی سہولیات کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد معین، ایمریٹ پروفیسر ڈاکٹر اسد استم خان، دیگر سینئر ڈاکٹرز اور فیکلٹی ممبران نے آسٹریلوی ہائی کمیشن مسٹر ٹموتھی کین کا گرم جوشی سے استقبال بھی کیا۔ یہ دورہ آسٹریلوی حکومت اور دی فریڈ ہولو فاؤنڈیشن اور کالج آف آپتھمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز کے درمیان شراکت داری کو اجاگر کرتا ہے، جو وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت اور سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں قابل علاج اندھے پن کی روک تھام اور آنکھوں کی دیکھ بھال کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آسٹریلی ہائی
کمیشن مسٹر ٹموتھی کین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آسٹریلیا کو پاکستان کے ساتھ مل کر شراکت داری پر فخر ہے، جس کا مقصد قابل علاج اندھے پن کو کم کرنا ہے اور معیاری علاج تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ کنٹری مینیجر فاروق اوان نے کہا کہ گزشتہ 27 سالوں سے حکومت اور ہسپتالوں کے ساتھ ہماری شراکت داری آسٹریلوی تعاون سے ممکن ہوئی، جس کی بدولت آنکھوں کی دیکھ بھال کی سہولیات کو عام آدمی دہلیز تک پہنچایا گیا ہے۔ جبکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد معین اور پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان نے کہا ہے کہ کالج آف آپتھالمولوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز میں جدید ترین طبی سہولیات اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی میں آسٹریلوی تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اندھے پن کے خلاف ہماری یہ مہم آسٹریلوی حکومت اور فریڈ ہولو فاؤنڈیشن کی کارکردگی بہترین کارکردگی کی مثال قائم کرتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ گوہر سعید، 5 نیوز، لاہور۔ اور 20,000 سے زائد سرکاری عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 11,000 عازمین کو ریاض الجنہ کی زیارت بھی کروائی جا چکی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں حرم تک آمد و رفت آسان بنانے کے لیے 5 بس اڈے مختص کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت حج انتظامات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سیکریٹری مذہبی امور ابرار احمد پیرزا، ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر ساجد محمود چوہان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ مکہ مکرمہ کے حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں اور کسی بھی شکایت کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے خدام الحجاج کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے عازمین پر زور دیا کہ وہ سعودی عرب میں قیام کے دوران مقامی قوانین کی پاسداری کریں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام عازمین کو کارڈز فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ حرم تک آسان رسائی کے لیے مکہ مکرمہ میں 5 بس اڈے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ طبی سہولیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ مدینہ منورہ میں 1 ہسپتال اور 3 ڈسپینسریاں، جبکہ مکہ مکرمہ میں 5 ڈسپینسریاں عازمین کی خدمت کے لیے فعال کی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کی ہدایت کے باوجود دادو میں گندم کی خریداری تاخیر کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت کے دعووں کے باوجود دادو میں ہاری کارڈ 16,900 رجسٹرڈ چھوٹے آباد کار سبسڈی سے محروم ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے نمائندہ 5 نیوز اللہ بخش خشک۔ جی اللہ بخش، بتائیے گا۔ کے باوجود دادو میں جو ہے رجسٹر آبادگاروں سے گندم کی جو خریداری ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دادو ضلع میں جو ہے 16,900 رجسٹر آبادگار ہیں، جن سے جو محکمہ خوراک کی جانب سے جو ہے 4 ارب 87 کروڑ مالیت کی جو گندم خریداری کا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے۔ تقریباً جو ہے 5,48,000 گندم کی بوریاں ہیں وہ جو خریداری کرنی تھی۔ تاہم جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خود آباد، دادو اور فلجی اسٹیشن پر جو ہے تقریباً جو ہے 18,000 گندم کی خریداری ہو سکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر سینٹر ہے جیسے جوہی، کینشا، رادھن سمیت جو تقریباً محکمہ خوراک دادو کے جو ضلع میں جو 7 جو سینٹرز ہیں ان میں جو ہے جو گندم کی خریداری ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ جو مقامی آبادگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ان سے محکمہ خوراک کی جانب سے جو ہے غیر قانونی طور پر کٹوتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری جو ریٹ ہے اس سے جو زیادہ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں جو ہے 10,000 جبکہ 9,500 روپے جو ہے جو مقامی جو آبادگار ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہدف ہے محکمہ خوراک دادو کا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ دادو ضلع کی صورتحال ہے جس پر محکمہ خوراک اور وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے کہ نوٹس لے۔ جی بہت شکریہ اللہ بخش۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اے آئی اور خصوصی اقدامات علی ڈار کی زیر قیادت دی آفس آف اے آئی اور پاک لانچ کی شراکت سے نیٹ ورکنگ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے علی ڈار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نظام کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کوئی عارضی رجحان نہیں بلکہ دنیا کا مستقبل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویژن کے مطابق 2029 تک پنجاب کو مکمل طور پر اے آئی سے فعال صوبہ بنا دیا جائے گا، جبکہ دنیا کے پہلے اے آئی سے فعال ڈیلیوری یونٹ کے قیام پر بھی کام جاری ہے۔ علی ڈار نے کہا کہ اے آئی کو شہریوں اور کاروبار کے لیے مؤثر بنانے کے ساتھ نوجوان نسل کو جدید اے آئی مہارتوں سے آراستہ کرنا بھی ترجیح ہے۔
शेखोपुरा में खून सफेद हो गया। सच्चा सौदा की रिहायशी साजिदा बीबी की जमीन पर सगे भाइयों के कब्जा करने की कोशिश। बेटी को बाप से मिलने वाली जमीन सगे भाई छीनने लगे। मुतासरा खातून इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद चिराग सिंधु की रिपोर्ट। शेखोपुरा के इलाका फरूखाबाद में कब्जा माफिया बेलगाम। सच्चा सौदा की रहायशी साजिदा बीबी की जमीन पर सके भाइयों की कब्जा करने की कोशिश। सच्चा सौदा थाना सदर के इलाका में खून सफेद हो गया। बेटी को बाप से मिलने वाली जमीन पर सके भाइयों का कब्जा। मुतासरा साजिदा बीबी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 47.5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਪਲਾਟ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ 27.5 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਲਰ ਢਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਖਲਾਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ। जबकि इलाका मकीन भी हवा की बेटी साजिदा बीबी की जमीन के लिए आला हुकाम से अपील करने लगे। ਸੀਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਆਪੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਏ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸੀਸੀਡੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਡੀ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। मुतासरा खतून साजिदा बीबी और अहले इलाका की वजीर आला पंजाब IG पंजाब सिटी इंचार्ज सुहेल जफर चट्ठा RPO शेखोपुरा और DPO शेखोपुरा से कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की अपील। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद चिराग संधू, चैनल 5 न्यूज शेखोपुरा। और CNW के टोल प्लाजा को मैनुअल सिस्टम से निकालकर मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब पेशरफ्त जारी है। इस हवाले से सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद बर्ड की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हाईवे के 41 टोल प्लाजों के डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर और FWO के नुमाइंदों ने ऑपरेशनल उमूर और पेशरफ्त से आगाह किया। ब्रीफिंग के मुताबिक जून तक तमाम 41 टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद बर्ड ने कहा कि डिजिटल निज़ाम के तहत इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन, खुदगार गाड़ियों की शनाख्त और ई-टैग के जरिए टूल वसूली मुमकिन होगी। उनके मुताबिक इक़दाम से टूल प्लाजों पर ओवर चार्जिंग का खात्मा होगा, शफाफियत में इजाफा होगा और टूल कलेक्शन का निज़ाम मज़ीद मौसर बनेगा। इजलास में FWO ने टूल प्लाजों की ऑपरेशनल और मैनेजमेंट सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी, जबकि डिजिटलाइजेशन के बाद आमदन में इजाफे का भी जायजा लिया गया। वज़ीर मवासलात ने कहा कि महकमा हाईवेज डिजिटलाइजेशन की जानिब तेजी से गामजन है और इक़दामात वज़ीर आला पंजाब के डिजिटल पंजाब विजन के मुताबिक जारी है। और अब बात करेंगे लाहौर के हवाले से। लाहौर पुलिस ने रवां साल के दौरान बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल किए हैं, जिनमें हज़ारों घरों और अफराद की चेकिंग के साथ मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी किए गए हैं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 1590 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए हैं, जिनके दौरान 81,000 से जायद घरों और 1,54,000 से जायद अफराद की चेकिंग की गई। कार्रवाइयों के दौरान 408 मुश्तबा अफराद और 64 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 116 जबकि नाजायज असलहे पर 56 मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा शराब नोशी के 26 और मनशियात के 29 मुकदमा भी दर्ज हुए। ऑपरेशन के दौरानिया 147 मार्केटें, 3000 से ज्यादा दुकानें, 92 बस अड्डे, 286 होटल और 385 हॉस्टल्स की भी चेकिंग की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने हिदायत की है कि कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाए, शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग यकीनी बनाई जाए और बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन और आम मुकामात पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाए। उन्होंने कहा कि अफसरान और एहलकार अलर्ट होकर फराइज अंजाम दें और हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स भी यकीनी बनाया जाए।
और अब आपको बताएंगे रहीम यार खान में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल ने जाफराबाद में पब्लिक सेक्रेटरीट में हल्के से आने वाले मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है, जहां अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद के मसाइल सुने और फौरी इक़दामात की हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर किया है। चौधरी जाफर इकबाल ने कहा कि अगरचे अवाम को महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जैसे मसाइल का सामना है, ताहम हुकूमत जल्द उन पर काबू पा लेगी। उन्होंने खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी कशीदगी के मुआशी असरात हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन के क़याम में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात के दौरान अवामी वफूद ने इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों और फलाही इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर में आगाही सेशन की सदारत की है, जिसमें तलबा और फैकल्टी को वाइट कॉलर जराइम और FIA के किरदार से मुतालिक आगाह किया गया। आगाही सेशन का मकसद तलबा और फैकल्टी को FIA के वाइट कॉलर जराइम के खिलाफ किरदार और उभरते हुए चैलेंजेस से आगाह करना था। डायरेक्टर FIA ने इस मौके पर कहा कि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए आगाही और चौकसी इंतहाई अहम है। उन्होंने शुरका को मुजरिमों के जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ हथकंडों के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि FIA शहरियों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश इक़दामात और मौसर कानून नाफिज करने के जरिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सेशन के दौरान एक सवाल और जवाब का सेशन भी मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत की, सवालात की और हिफाजती इक़दामात, रिपोर्टिंग के तरीक़ेकार और आगाही से मुतालिक रहनुमाई हासिल की। और अपडेट करें, लेस्को ईस्टर्न सर्कल में रात के वक्त चेकिंग ऑपरेशनल के दौरान डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है, जबकि गैर कानूनी कनेक्शन भी पकड़ लिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सहाफ़ी कॉलोनी सब डिवीजन के इलाके बरहमनाबाद में एक आटा चक्की पर गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी, जिसे चेकिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी पर 25,000 यूनिट्स का टैक्स बिल मुतालिका सारिफ पर आयद कर दिया गया है, जबकि FIR के इंदराज के लिए मुतालिका थाने में दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेग्स को इंजीनियर मोहम्मद रिजवान भट्ट की हिदायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिजली चोरी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएंगे। और अब आपको बताएंगे कि हैदराबाद में गर्मी का जोर बरकरार है, दर्जा हरारत बढ़ गया। जिला इंतजामिया की जानिब से समाजी तंजीमों और NGOs के इश्तराक से रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मुसाफिर और शहरियों को ठंडा पानी भी पिलाया जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान एक कैंप में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जिब्रान। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी शदीद गर्म मौसम और शदीद गर्म मौसम के बाद जो है दर्जा हरारत बढ़ गया है और इसी ज़मन में ज़िला हैदराबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है शहर भर की तमाम निजी और सियासी समाजी तंजीमों और NGOs को ये हिदायत की गई है कि वो शहर के मुख्तलिफ मकामात, चौक चौराहों पर जो है जो पानी के कैंप लगाएं, जहाँ पर शहरियों को पानी पिलाया जाए, ठंडा उन्हें शरबत पिलाया जाए और गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए उन्हें जो है सहूलियात फराहम की जाए। मेरा कैमरामैन फरमान गौरी अगर आपको दिखाए तो ये कैंप लगाया गया है यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर, जहाँ पर शहरियों को ठंडे पानी पिलाया जा रहा है। शदीद गर्म मौसम है और गर्म मौसम में सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये तंजीमों को हिदायत की गई थी कि वो अपने तौर पर जो है शहरियों की जो है खिदमत करें, उन्हें ठंडा पानी पिलाएं ताकि वो शदीद गर्म मौसम में जो है गर्मी से बचाव हासिल कर सकें। वाज़ह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों में जो है शदीद गर्म मौसम है, दर्जा हरारत जो है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है और आने वाले वक्तों में महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होगा। जी। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में शहर भर में 5,833 मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनका मकसद शहरियों को मुकर्रर निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेशन के तमाम जोन्स और होलसेल मार्केट्स में कीमतों का सख्त मुआयना किया गया। कार्रवाइयों के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी पर
88 और 500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि 9 अफराद को गिरफ्तार और 10 दुकानें सील कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया की मौसर मॉनिटरिंग के बायस सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें भिंडी की कीमत में 60 रुपए और टमाटर की कीमत में 35 रुपए तक कमी की गई है। सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखने के लिए मैलसी और जैकबाबाद से प्याज के 55 ट्रक और पाकपतन से आलू के 47 ट्रक लाहौर पहुंचाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह किया है कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। और अब आपको बताएंगे कसूर के थाना थे शेखम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिक़दार में चर्स बरामद कर ली है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आफ्ताब अहमद फलवारन की हिदायत पर थाना थे शेखम पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान नईम वल्द रफीक गुज्जर और बिलाल वल्द अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान अरसा दराज से थे शेखम और गिरदोनवा में मनशियात फरोशी में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान रोशन भेला टोडेपुर के इलाके से मुलजिम नईम के कब्जे से 1510 ग्राम जबकि मुलजिम बिलाल के कब्जे से 1480 ग्राम चर्स बरामद हुई है। SHO राहिल अहमद खान ने अपनी टीम के हमरा अड्डा शेखम में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। और तहसील फालिया में ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम 22 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें दुल्हनों को जहेज और नक़द सलामी भी दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम मंडी बहाउद्दीन गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इज्तिमाई शादियों की तक़रीबात का इनेकाद करता आ रहा है और अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद जोड़ों और 1000 से ज़ायद ख़ानदानों में खुशियाँ बांट चुका है। हालिया तकरीब में 22 दुल्हनों को जहेज और नक़द सलामी दी गई, जबकि हर दुल्हन को तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का सामान फराहम किया गया। इसके साथ साथ 22 दुल्हनों की जानिब से हक मेहर भी अदा किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नदीम अफजल चंद ने खिताब करते हुए कहा कि मंडी बहाउद्दीन में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो खामोशी से फलाही काम करते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम उनमें नुमाया किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने फोरम के चेयरमैन शाहिद रजा रांझा और उनकी टीम की खिदमत को सराहा। तकरीब में शरीक समाजी शख्सियत नईम चीमा ने भी फोरम के काम से मुतासर होकर इज्तिमाई शादियों के इनेकाद को काबिल तकलीद करार दे दिया। तकरीब न सिर्फ मुस्तहक खानदानों के लिए खुशियों का बायस बनी बल्कि समाजी हम आहंगी और फलाही जज्बे को भी कास रही। और अब बात करें ननकाना साहब की। ननकाना साहब में शहरी उवैस फयाज की दरख्वास्त पर थाना सिटी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में अहमद राइस मिल्स, नवाज राइस मिल्स और जैन राइस मिल्स बचेगी की मालिक नवाज भट्टो को नामजद किया गया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजमान ने लेन देन के बाद 88 लाख रुपए मालियत का चेक दिया, जो बैंक में जमा करवाने पर डिसऑनर हो गया। शहरी का कहना है कि रकम की अदायगी का मुतालबा करने पर मुलजिम ने इनकार कर दिया, जिससे उसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवाज भट्टो ने 2 मरतबा जमानत हासिल की, जबकि 3 मरतबा उसकी जमानत मनसूख भी हुई, जिसके बाद वो फरार हो गया था। ताहम अब पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ननकाना साहब का कहना है कि कानून से कोई बालातर नहीं और जुर्म करने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP के शेयरिंग कमेटी का टाउन हॉल में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फेज़ 2 की पेशरफ्त, तरक्याती मनसूबों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने की, जबकि वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी, वज़ीर आला के मुशीर ज़िशान मलिक, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फेज़ 2 पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 8780 में से 6332 गलियां और सड़कें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि KMCL के तहत मजीद 1963 पर काम जारी है। वासा ने भी 644 गलियां मुकम्मल कर ली हैं। इजलास में बताया गया कि फेज़ 1 में होने वाली बचत को फेज़ 2 की नई स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ने KMCL और वासा की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी दी और हिदायत की कि तामीर शुदा गलियों को बाहिफाजत यकीनी बनाया जाए।
शेखुपुरा का रुख करते हैं और बताएं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। खुराक से मुंसलिक कारोबारों की चेकिंग के दौरान भारी जुर्माने आयद और नाक़िस अशिया तलब कर दी गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की निगरानी में जिला भर में 126 फूड बिजनेस का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर 3,33,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। मयारी दूध की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 26,300 लीटर दूध का मुआयना किया गया। कार्रवाई के दौरान ममनू और जायद मियाद अशिया भी तलब की गई, जिनमें 216 लीटर सोडा वाटर, 5 लीटर ऑयल, 20 किलोग्राम नमक, 3 किलोग्राम टमाटर और 4 किलोग्राम दीगर एक्सपायर अशिया और बेकरी आइटम्स शामिल थे। फूड क्वालिटी की जांच के लिए नमूना जात लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं, जबकि एक फूड पॉइंट को सील कर दिया गया है। मुल्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए कचहरी चौक पर धरना दे दिया और सीईओ हेल्थ का घेराव भी किया है, जिससे शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है, जिसके बायस अहम शाहरा पर ट्रैफिक मअतल हो गई। मुजाहिरीन ने सीईओ हेल्थ के दफातर के बाहर भी एहतजाज करते हुए उनका घेराव किया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी नहीं हुई और मुतादिद अलाउंसेस भी तवील अरसे से अल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि डेटा एंट्री के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप इंतहाई पेचीदा है, जिसे सिर्फ माहिर अफराद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए काम करना मुश्किल बना दिया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। और शक्करगढ़ के नवाही गांव हुसैनपुर बाबरिया में तकरीबन 10 फीट लंबा सांप घर में दाखिल होने के वाक़े पर रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया है। शक्करगढ़ के नवाही इलाके हुसैनपुर बाबरिया में इस वक्त खौफ व हिरास फैल चुका है, जब एक तकरीबन 10 फीट लंबा सांप अचानक एक घर में घुस गया। एहले खाना ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी, जिस पर टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशराना महारत का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 25 मिनट के ऑपरेशन के बाद सांप को बाहिफाजत काबू कर लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक सांप को बाद अज़ा कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। बर वक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 की फौरी और मौसर कार्रवाई को सराहा। गुजरात में मेहनत कश की झोपड़ी मस्मार करने के वाक़े पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर जलालपुर जट्टा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी कार्रवाई की है और मुलव्वस मुलजमान को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में जाहिद अशरफ और जबी अब्बास शामिल हैं, जबकि वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। DPO गुजरात का कहना है कि मुतासरा शहरी को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा और कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।